السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات. میں ہوں ارتضیٰ اور آپ کی بات کرنے کے لیے آج میں موجود ہوں کراچی کے علاقے لیاری ٹاؤن میں شاہ ولی اللہ روڈ پر. یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ موجود ہیں. آج یہ وہ لوگ ہیں کہ اکثر جن کی بات کوئی نہیں کرتا. ہم کریں گے ان کی بات سما ٹی وی کے اس بہت بڑے پلیٹ فارم سے اور بات کی جائے گی بجٹ 2011 اور 2012 کے موضوع پر. یہاں پر ہم نے جب پروگرام سے پہلے بہت سارے لوگوں سے ڈسکشن کی کہ آپ بجٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں, آج ہم بجٹ کو ڈسکس کریں گے, تو انہوں نے یہ کہا کہ بجٹ امیروں کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بجٹ سے غریبوں کا کوئی تعلق نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ 63 برس سے یہ عوام جس کو بجٹ کے بارے میں تفصیلات نہیں پتا ہوتی, یہ صرف خون کے آنسو روتے ہوئے آئے ہیں اور شاید آئندہ آنے والے زمانے میں بھی خون کے آنسو ہی روتے رہیں گے. کیونکہ بجٹ ایک ایسی سچویشن ہے, ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا گیم ہے, ایک ایسا کھیل ہے جو صرف چند مخصوص طبقات کے لیے ہوتا ہے, اس میں تمام لوگ شامل نہیں کیے جاتے. بجٹ اگر میں کہوں کہ بجٹ کہتے کس کو ہیں تو سب سے آسان مثال یہ ہوگی کہ بجٹ کہتے اس بات کو ہیں کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں. آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اس حساب سے آپ کے اخراجات ہونے چاہیے. اس ڈسکشن کے اندر میرے ساتھ شامل ہوں گے ہمارے سینئر اکنامسٹ ہیں. بیٹا ذرا بات سننے دیئے. سینئر اکنامسٹ ہیں افسر, آپ کا اسم گرامی؟ مزمل اسلم. مزمل اسلم صاحب, آپ کا تعلق ہے جہانگیر صدیقی گلوبل سے, کافی سینئر پوزیشن پہ کام کرتے رہے ہیں. سچویشن یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ان سے بھی ڈسکس کریں گے, یہاں پہ لوکل لوگوں سے بات کریں گے. بجٹ حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں, کیونکہ پیچھے اس وقت سوسائٹی میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے جس وجہ سے کچھ تھوڑی سی فائرنگ وغیرہ ہو رہی ہے, لوگ ڈسٹربڈ ہیں. یہاں پہ نیا آباد کے اندر بجٹ آنے میں کچھ چند روز باقی ہیں, مگر کیفیت کیا رہے گی, بجٹ کہاں جائے گا. لوگ صرف ایک سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں بجٹ کے بارے میں نہ بتائیے, ہمیں یہ بتائیے کہ روٹی کپڑا اور مکان کون دے گا, ہمارے گھر کے چولہے کس طرح جلیں گے, ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی, ہماری تنخواہیں جو حکومت نے کم سے کم 7,000 روپے طے کی ہیں کیا ہمیں وہ جائز حقوق کے حساب سے تنخواہیں ملیں گی, یا ہم اس تنخواہ کے ملنے کے بعد بھی کسی سے ادھار یا بھیک مانگ رہے ہوں گے کہ ہمیں گزارا کرنے کے لیے کچھ پیسے دے دیے جائیں. پہلے بات ہوگی جنرل عوام سے, اس کے بعد ڈسکشن کریں گے ہمارے اکنامسٹ مزمل اسلم صاحب سے. پہلے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جناب, بجٹ کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ بجٹ عام لوگوں کے لیے اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے. اس میں جو حکومتی جس میں امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں. بجٹ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ بجٹ کی ضرورت ہی بس امیر لوگوں کے لیے کر دیتے ہیں. بجٹ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, کوئی صاحب بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے, آپ بتائیے. بجٹ کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ امیروں کو زیادہ امیر کرنے کے لیے ہوتی ہے. امیر کیسے ہو جاتا ہے, مزید امیر کیسے ہو جاتا ہے؟ غریبوں کو ختم کرنے کے لیے اب یہ جو بجٹ آ رہا ہے, بھائی امیر رہے گا نہیں, اس حکومت کا یہی ہے کہ غریب نہیں رہے گا. غریب بھائی سے بات کریں. بجٹ آتے کے ساتھ ہی ہر چیز کے بھاؤ بڑھا دیں گے, بجلی, گیس, کھانے پینے کی اشیاء, پیٹرول, یہ وہ ٹوٹل XYZ جتنی بھی چیزیں ان سب کے بھاؤ بڑھا دیں گے. جس سے بڑھانے سے کیا ہوگا؟ بھاؤ بڑھانے سے ہوگا مہنگائی ہوگی. ہماری تنخواہ 6,000 ہے, 6,000 میں ہم اپنا گھر چلائیں گے, گھر والوں کو چلائیں گے, باہر کا کریں گے کہ مزمل صاحب موجود ہیں. مزمل صاحب یہ پوائنٹس آپ نوٹ کرتے رہیں. 6,000 روپے تنخواہ ہے, چیزیں مہنگی ہوتی چلی جائیں گی. آپ بتائیے. جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپل پارٹی جب پہلے اقتدار پہ آیا تو انہوں نے کہہ رہا تھا کہ ہم 100 دنوں میں پورے کے پورے نظام صحیح کر دیں گے. ابھی 3 سالوں اگر ہم نے صحیح نہیں کر دیا 100 دنوں میں, لہٰذا ہم اپنا اقتدار چھوڑ دیں گے. بجٹ آنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ بڑے صاحب یہ بتاؤ, بجٹ آنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہونے کا مقصد یہی ہے کہ پورے عوام کی جو نا رائے پوچھ لیں کہ بھئی عوام کیا کہتے ہیں. یہ آپ بتا دیں آپ کیا کہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی نے یہ وہ کپڑا, روٹی, مکان کا وعدہ کیا تھا, اور آج جو ہے نا غریب عوام کے پاس کچھ نہیں ہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا. کوئی اور صاحب مجھے بتائیں گے, آپ جناب بتائیں گے مجھے کہ بجٹ جو آنے والا ہے 2011-12 کا, بجٹ سے اس آدمی کا کیا تعلق ہے جو لے مین ہے, جو بالکل کچھ نہیں جانتا, جو صرف پاکستان کا شہری کہلاتا ہے اپنے آپ کو, جس کے پاس شناختی کارڈ ہے, اس کا کیا تعلق ہے بجٹ سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بجٹ ایک موت ہوتی ہے, کیونکہ بجٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ نئے ٹیکسز لگتے ہیں, ریٹ بڑھتا ہے. امیر کیا کرتا ہے کہ ابھی سے وہ ساری پیمنٹ, سارا مال
जमा करता है, उसको पता है बजट आएगा, रेट बढ़ेगा जखीरा अंदोजी शुरू हो जाती है। और गरीब पिस्ता जाएगा। आपको पता है दूध मैंने सुना है कि 66 लीटर रुपए होने वाला है, ठीक। आजकल 60 रुपए, बजट के बाद 66 हो जाएगा। हर चीज पे रेट बढ़ेगा। बताओ कि जो शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी रखता है उसका इस बजट से कोई फायदा नहीं उस बंदे को। मैं समझता हूँ इसका ये तरीका होना चाहिए कि अवामी नुमाइंदे वो बजट बनाए। हमारा बजट कौन बनाता है? IMF, आलमी बैंक। सर आप ये पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, जो- आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपसे बिल्कुल इन मौजूद उनका सवाल भी और इनका सवाल भी IMF बनाती है। मैं- हमारे यहाँ का लोकल नुमाइंदा मैं जो आपसे- लेमैन है वो नहीं है उसके हिना अंदर। रब्बानी खर अगर या अब्दुल हफीज शेख से आप टमाटर का भाव पूछ लो, अगर आपको बता जाए मैं सारी जिंदगी उनकी गुलामी बहुत करूंगा। सारे मिनिस्टर्स को तो ये नहीं मालूम होता कि इस वक्त कराची में दूध की प्राइस कितनी है, यही मैं कह रहा हूं। कराची में चीनी की प्राइस कितनी। ऑफर्स आती हैं कि फला के गोदाम में चीनी इस भाव मिल जाएगी, जितनी उठानी है उठा लो। आप बताएंगे बजट से क्या होता है, बजट क्या होता है? नहीं बताएंगे आप में से कोई साहब बताएंगे? आपने भी बताया था, आप बताएंगे बजट से क्या होता है? महंगाई बढ़ेगी, गरीब आदमी भूखा मर जाएगा भाईजान, ये हमें मालूम है। गरीब आदमी भूखा मर जाएगा। देखिए ये वो आवाम है कि जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इकोनॉमिक्स से, वो सिर्फ ये बात जानते हैं कि जब बजट आएगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी, बजट आएगा तो ये हो जाएगा, बजट आएगा तो वो हो जाएगा। आप बताएंगे बजट से क्या होगा? बजट से यही होता है कि हर चीज महंगी हो जाएगी और जो गरीब तबका है, अच्छा बजट से कभी कोई चीज सस्ती भी होती है क्या? ये तो इस हुकूमत में मुश्किल होना नहीं, किसी भी हुकूमत में 63 बरस के अंदर कभी सुना? मुश्किल ही है कि कभी हुआ हो, कभी मुश्किल है जो। आप बताएं। या बहुत महंगाई हो रही है, बेरोजगारी है पहले से, गरीब आदमी तो भीख मांग रहा है भाई। बेरोजगार आवाम से बजट का कोई ताल्लुक है? नहीं है, नहीं बिल्कुल। इस दुनिया में नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि सरदारी साहब की हुकूमत है। आप बताएंगे कुछ बेटा? आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, पढ़ते हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड ईयर कर रहा हूँ। सेकंड ईयर में। बजट क्या होता है यार? बजट यही गरीब आवाम के लिए और महंगाई करेंगे और क्या। अच्छा और क्या होता है बजट में? बजट में हर चीज की लिस्ट और बढ़ती जाएगी और नए रेट और बढ़ते जाएंगे। फायदा किसे होता है, नुकसान किसे होता है? नुकसान गरीब आवाम को ही होगा बस। और फायदा किसे होता है? अमीर। क्यों फायदा होता है अमीर को? कि अमीर ये बनवाते हैं, यही आगे से काम करवाते हैं सारे, इनका ये सारा किया क्योंकि करा। इनकी इंडस्ट्रीज होती हैं, क्योंकि इनकी सनतें होती हैं, क्योंकि इनको इनकी ही ज्यादा जमीनें फायदा होती हैं, होगा। क्योंकि इनके दाल चावल आलू तमाम चीजें उग रही होती हैं, यही करवा रहे होते हैं हैं? सब। क्योंकि इनकी सिगरेट की कंपनीज होती हैं। जी जी। हैं? काम करता हूँ, मुझे एक सेकंड, हाँ आप फिर बताएंगे कुछ। एक साहब ये दोबारा कोई बात करना चाहते हैं, बताएं। कासिम पे काम करता हूँ, मुझे मेरे भाई मुझे पता है कि घी तेल कितने का आता है, मगर नहीं, यहाँ पे उसी रेट में घी तेल बिकेगा जिस रेट पे हुकूमत ने फिक्स करना है। चाहे गरीब आदमी की जेब में पैसे हो या ना हो, गरीब आदमी अपने बच्चों को बेचने पे मजबूर हो जाता है, फिर भी उसका पेट पूरा नहीं होता। पूरा दिन आदमी अपने पेट के लिए क्या क्या करेगा। बात दरअसल ये है कि अगर आप इस बात को नोटिफाई, इस बात को नोट कर सकें या इस बात को समझ सकें कि बजट जब भी घर के अंदर घर का सरबराह बनाता है तो वो कोशिश करता है कि मैं अपना पेट काट लूं और अपने बच्चों को तालीम दे दूं, अपना पेट काट लूं, अपने बच्चों को सेहत दे दूं, अपना पेट काट लूं, अपने बच्चों को सही माहौल, अच्छी खुशगवार फिजा दे दूं। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर आप इस छोटी सी माशरे को, अगर आप अपने घर के ऊपर, सबसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है घर, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है यूनाइटेड नेशंस, इसके बीच में कहीं एक मुल्क आता है, उस मुल्क का एक सरबराह होता है और ये अवाम, ये उसकी रियाया समझ लीजिए, ये उसके बच्चों के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले तो उस लीडर को, उस रहनुमा को, सरबराह को सोचना पड़ेगा कि उसे किस तरीके का बजट चाहिए। अपने बच्चों को फायदा पहुंचाना है या अपने बच्चों को पीस देना है। मेरे साथ मौजूद है हमारे इकोनॉमिस्ट मुजम्मिल असलम साहब। सर आपने यहाँ पे सवालात सुने, आपने लोगों के जज्बात भी देखे, लोगों की कैफियत इस वक्त इंतहाई मुतज़लज़ल है। कुछ लोग ये नहीं जानते कि बजट क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं बजट अमीरों को अमीर बनाने के लिए होता है, गरीब गरीब तर हो जाएगा। आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? सरबराह की मिसाल मैंने दे दी कि आप अगर अपने घर के सरबराह हैं तो आप ये कहेंगे कि यार मैं अपना पेट काट लूंगा लेकिन अपने बच्चे की तालीम पे कोई नेगोशिएशन नहीं करूंगा, अपने बच्चे की सेहत पे कोई और बात नहीं कर सकता, पहले आई हैव टू गिव एवरीथिंग टू माय चिल्ड्रन, टू माय वाइफ, टू माय फैमिली। आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट के सिलसिले में? देखें, इस वक्त जो आवाम की जो परेशानी है वो बिल्कुल बजा है, और ख़ास तौर पे महंगाई और बेरोज़गारी। अब पिछले 4-5 सालों में इस मुल्क में बेरोज़गारी की इंतहा हो चुकी हुई है, और उस बेरोज़गारी की वजह से इस वक्त जो है ना हर आदमी सस्ते से सस्ते रेट पे काम करने के लिए तैयार है। जो आदमी पहले 600 रुपये मजदूरी में काम करता था, बेरोज़गारी की वजह से वो 300 रुपये में भी काम करने के लिए तैयार हो गया ताकि वो घर कुछ अनाज ले जाए। अब रहा सवाल ये बजट का, ये बजट सबसे पहले तयन करता है कि अगले साल रोज़गार कितना आएगा।
हुकूमत कितने तरक्याती क्या हमारी हुकूमत को पता है कि अगले साल रोजगार कितना आएगा? देखिए, हुकूमत को पता होता है, लेकिन हुकूमत को ये नहीं पता होता कि जो बजट में वादा कर रहा है वो पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगले साल रोजगार कितना आएगा? मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप माशियात जानते हैं, आप तमाम चीजों को जानते हैं। PSDP कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड, यानी कि वो तमाम चीजें जो यहाँ पे तामीर की जा रही है, रोड बनाई जा रही है, पुल बनाया जा रहा है, कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, कोई पार्क बनाया जा रहा है, इसके अंदर 500 बिलियन रुपए का, 500 अरब रुपए का बजट था, उसको 100 बिलियन काट दिए गए, तकरीबन 400 का हो गया होगा। अब आप मुझे बताएं कि जब ये तमाम पैसे थे उसके बावजूद 45 अरब रुपए वापस कर दिए गए, क्यों? क्योंकि उनको खर्च नहीं किया जा सका। तो ये मुझे बताइए कि 45 बिलियन रुपए जो वापस किए गए उसमें कितने सारे काम होते, कितने माशी सिस्टम अच्छा होता, लोगों को रोजगार मिलती, गरीबों का काम चलता, मजदूरों को काम मिलता। देखें, ये जो फिगर हैं, जो नंबर हैं, थोड़ा सा मैं इसकी तशरीह कर दूं। 650 अरब रुपए का हुकूमत ने तखमीना लगाया था, जिसमें से सूबों ने 300 अरब रुपए और हुकूमत ने 350 अरब रुपए इस्लामाबाद ने खर्च करने थे। पिछले साल अगस्त में जो है सैलाब आ गए पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से हुकूमत की टैक्स आमदनी जो है उस पे जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सर मैं यहाँ पे बात कर लूंगा, सैलाब जब आया था तो दुनिया से एड भी तो आई थी हमारे पास। बताइए, आप बताइए। सैलाब पे जो आपने फ्लड टैक्स लगाया है, जितना भी जो भी आपने किया, सैलाब वाले आज भी कैंप के अंदर बैठे हुए हैं। और बजट की आप बात कर रहे हैं, बुनियादी चीज होती है तालीम, सेहत और आपका एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन हो गई, आपकी सेहत हो गई, अमन अमान हो गए, लॉ एंड ऑर्डर। ना लॉ एंड ऑर्डर के आप सिचुएशन देख रहे हैं कि पुलिस गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, वहाँ गोलियां चल रही हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता, पुलिस गाड़ियाँ यहीं खड़ी हुई हैं। ठीक है, आपकी एजुकेशन देख लें, गरीब आदमी अपने बच्चों को अगर तालीम दिलाता है, अगर सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि अगर गरीब आदमी का बच्चा अगर यहाँ से पढ़ के जाता है, या वो पान का ठेला लगाएगा या कोचर वाला मार्केट में नौकरी करेगा। और अगर आप ओ लेवल पे, कराची लेवल पे, बड़े बड़े स्कूलों में आप देखते हैं जहाँ वज़रा के, मिनिस्टर के, ब्यूरोक्रेट्स के लड़के पढ़ते हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। यानी कि अगर गरीब आदमी का बच्चा बनेगा तो यही करेगा। तीसरी बात, आप मेडिकल पे ले जाएं, मेडिकल के अंदर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाएं, किसी हॉस्पिटल के अंदर आपको दवाई मिलती है, न इंजेक्शन मिलती है, न आपको डॉक्टर्स मिलते हैं। क्या हमारे लिए सेहत भी नहीं है? मुजम्मिल साहब बताएंगे, क्या आप जवाब देंगे इनके सवालों का? यानी ये बात आ रही है करप्शन के ऊपर। देखें, बात बिल्कुल इनकी हक बजानिब है। इस वक्त जो हमारा जो बजट है उसमें ना होने के बराबर हम सेहत को दे रहे हैं, ना होने के बराबर हम पुलिस को दे रहे हैं, ना होने के बराबर हम तालीम को दे रहे हैं। लेकिन मैं आप सारों को एक बात बता दूं, इसकी दो वजूहत हैं। एक ये वजह है कि हमने जो है आज तक अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया सही, ताकि हम अपने अवामी नुमाइंदे सही ला सके। सर देखिए, अगर हम वोट का इस्तेमाल करेंगे तो बजट सही हो जाएगा। नहीं, हाँ, क्यों नहीं होगा? आपके नुमाइंदे हैं, हमारे लाए हुए नुमाइंदे हैं। कितने % लोगों ने वोट दिया, उनके घरों के अंदर नलके नहीं है जिसमें से पानी आ जाए? सर, बजट के बारे में अगर बताया जाए तो हर हुकूमत आई है, हर ऐसा ही बजट निकला है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, हुक्मरानों को फायदा हो रहा है, हमको तो कोई फायदा नहीं हो रहा। यहाँ पे पोजीशन ये है। मैं आपको एक आज मुजम्मिल साहब, इस फॉर्मूले को हम जरूर सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात हो रही है बजट के ऊपर। मुजम्मिल असलम साहब मौजूद है, लोग मौजूद है यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बजट किसके लिए होता है, क्या होता है, क्यों होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला भी हमें बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और हम डिस्कस करेंगे कि बैंक्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बैंकिंग का डिपार्टमेंट या बैंकिंग इस वक्त किस कदर शामिल है इस बजट की सिचुएशन के अंदर, जो बजट की कैफियत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।